Hello students and welcome to the third lecture of differential equation. In the last class we discussed about method of solution of differential equation, and we also studied the variable separable method. Okay, in this class we are going to discuss some problem about variable separable. Firstly, some initial values problem of variable separable. So let's get started. The first problem is on the board. Is your dy by dx is equals to cos x. Very simple problem, but there is a condition given. Then y is equals to 2. Okay, when x is equals to 0. Y is equals to 2 when your x is equals to 0. ओके, इसका मतलब हमें आराम से सॉल्यूशन पहले निकालो और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वहीं पे x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 पुटअप करेंगे, तब हमें जो वो c होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसी कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। उस वैल्यू को फिर हम पुट बैक कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सो गिवन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स दे दिया है। सो वी कैन राइट dy इज इक्वल्स टू कॉस एक्स dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, integration of dy is equals to integration of cos x dx. so y is equals to cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। ये आपका आंसर है, बट ये दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या है, मतलब c का एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगा। ये c की पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेगा, हम x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, द इक्वेशन बिकम्स 2 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस c, तो 2 इज इक्वल टू कितना, c। ओके, सो जनरली हमें मिल गया कि c इज इक्वल टू 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन द जनरल एक सॉल्यूशन। सो द आंसर क्या होगा, द आंसर इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन is y is equals to sin x प्लस c का वैल्यू 2, y is equal to sin x plus 2, and this is your answer. Okay, got it? Question number 2, dy by dx is equals to 1 plus y square by 1 plus x square. dy by dx is equals to 1 plus y square by 1 plus x square. Condition, when y is equals to root 3, x is equals to 1. y is equal to root 3 when x is equals to 1. This is the initial values we have given. So first solutions, given that dy by dx is equals to 1 plus y square by 1 plus x square, so we can write we can do the solution of this differential equation by variable separable. So variable separable में करने के लिए हमें dy के y को dy के पास लाएंगे और 1x स्क्वायर वाले टर्म को dx के साथ लिखेंगे। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dy बाय 1 plus y square is equals to dx by 1 plus x square. Now integrate both sides.
Now integrate both side. So integration of dy 1 plus y square is equals to integration of dx 1 plus x square. So this is tan inverse y is equals to tan inverse x plus c. Okay, tan inverse y is equals to tan inverse x plus c. So now tell me what is the value of your c. This is the general solution, is your general solution. So now to find the particular solution, we have to find the value of c. To find the value of c, put x is equals to 1 and y is equals to root 3. So it becomes tan inverse root 3 is equals to tan inverse of 1 plus c, and tan inverse root 3 is pi by 3 is equals to tan inverse 1 is pi by 4 plus c. The c is equals to pi by 3 minus pi by 4, that is pi by 12, that is pi by 12. So your answer will be tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus pi by 12, or we can write y is equals to tan inverse of x plus pi by 12. Okay, so that's your final answer. So moving on, note कर लो इसको. Moving on to our third questions. Question number 3. D square y by dx square is equals to 6x. Okay, और कंडीशन दिया है when y dash is equals to 2 and y is equals to 1 when x is equals to 0. इसका मतलब है when x is 0, when x is equals to 0, at that time y dash is equals to 2 and y is equals to 1. मतलब f of 0 means y is equals to 1 है at x is equals to 0 and at x is equal to 0 dy by dx मतलब y dash ये भी हमारा 2 है. So solution d square y by dx square is equal to 2. Okay, let y is equals to dp y is equals to p, sorry dy by dx is equals to p लेते हैं. Then d square y by dx square मतलब d by dx of dy by dx and that is equals to dp by dx. So d square y by dx square is equals to 2. That's why dp by dx is equals to 2. So we can write this is dp is equal to 2 dx. Sorry, क्वेश्चन तो 6x था. 6x. Okay, 6x dx. 6x dx. Then integrate both side. So we have integration of dp is equals to 6 into integration of x dx is equals to p is equals to 6x square by 2 plus c. So ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 3 जा 6. So p is equals to 3x square प्लस इसको c1 लिखो प्लस c1. p is equals to 3x square प्लस c1. p is nothing but p हमारा क्या है dy by dx है. So write it down, dy by dx is equal to 3x square plus c1. So your dy is equals to 3x square plus c1
dx। नाउ इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, so integration of dy is equals to integration of 3x square plus c1 dx। so आपका y is equals to 3x cube by 3 plus c1x plus c2। ओके 3x स्क्वायर, ये सब ये आपका सॉल्यूशन मिल गया एंड दिस इज योर इक्वेशन। हाँ ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिया है देखो। फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 दिया है। x की वैल्यू 0 पुट करो तो y मिल जाएगा 1। सो इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो कितना होगा 1, ये तो 3 3 तो कैंसिल, 3x क्यूब है सिर्फ। 1 इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस c1 इंटू 0 प्लस 0 प्लस c2 लास्ट में c2, x क्यूब प्लस c1x प्लस c2 मतलब c2। सो c2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, c2 इज इक्वल्स टू 1। ओके c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो p क्या है हमारा इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन कुछ इक्वेशन 1 मान लो कि dy बाई dx क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस c1, तो x 0 होगा तो dy बाई dx कितना होगा 2, यहाँ दे दिया है y डैश मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c1। सो आपका आंसर c1 इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनली कितना c1 का वैल्यू 2 निकला और c2 का वैल्यू 1 निकल गया, ठीक है। सो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर solution is y is equals to x cube plus c1x, c1 का वैल्यू 2, 2x plus c2 is equals to 1 and that's your final answer। ओके हम डायरेक्ट यहाँ से भी c1 पहले निकाल सकते थे, बाद में c2 निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ एक स्टेप से भी हम c1 निकाल सकते थे डायरेक्ट, बाद में किए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नोट कर लो इसको सबको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन मूविंग ऑन टू एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम आई गेस। ओके dy बाई dx जनरल सॉल्यूशन निकालो, फाइंड द सॉल्यूशंस इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। dy बाई dx साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई दिया है। ओके तो इसके लिए हमें देखो, इसको ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम पढ़े थे, लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लो कि x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ओके वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y। ओके देखो तुम कोशिश कर लो, इधर को उधर कोई कुछ नहीं, मतलब x और y से साइन के अंदर मिक्स्ड हुए हैं, इसको सेपरेट करना वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल बनेगा आफ्टर ए सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन के बाद दिस बिकम वेरिएबल सेपरेबल। सो हमें करना है कि पुट t इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें डेरिवेटिव एक बार करना पड़ेगा सच दैट ये क्या होगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। और वी कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। सो
सो x प्लस वाई की जगह t पुट करेंगे, यहाँ t पुट करेंगे, x प्लस वाई की जगह t पुट करेंगे एंड dy बाई dx की जगह इसको भी dt बाई dx में कन्वर्ट करेंगे। सो dy बाई dx की जगह dt बाई dx माइनस 1 लिखेंगे। सो इट विल बी dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t प्लस cos t। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन t प्लस cos t प्लस 1, सॉरी dt बाई dx सही है। सो dt बाई dx इज इक्वल्स टू साइन t प्लस cos t प्लस 1। सो dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन t प्लस cos t प्लस 1, ये dx है, ये तो होगा नहीं t के साथ, x से नहीं होगा तो इसको इधर ले आओ। सो dt बाय साइन t प्लस cos t प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला कि साइन x इज इक्वल्स टू और साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x एंड cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ओके, वही वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे इट विल बी dt बाय साइन t, ये होगा 2 tan t बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाई 2 प्लस cos t हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर t बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाई 2 प्लस 1। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाई 2 dt ऊपर चला जाएगा, यहाँ कौन बचेगा 2 tan t बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर t बाई 2 प्लस यहाँ एलसीएम गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाई 2, तो इसके नीचे 1 था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर t बाई 2। ओके, सो ऊपर वाले को हम लिख देंगे, अभी इंटीग्रेशन का साइन है, ऊपर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, नीचे हो जाएगा देखो टेन स्क्वायर t बाई 2 टेन स्क्वायर t बाई 2 कैंसिल, तो 1 और 1 2, 2 प्लस 2 टेन t बाई 2, 2 प्लस 2 टेन t बाई 2, यहाँ dt है। ओके, देन नाउ पुट tan t बाई 2 इज इक्वल टू सम z, सो सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू dz हो जाएगा। सो इस 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से देखो सेकेंड स्क्वायर t बाई 2, ये 2 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस टेन t बाई 2 है, 1 प्लस टेन t बाई 2 है। सो सेक स्क्वायर t बाई 2 बाई 2 बिकम द dz, सेक स्क्वायर t बाई 2 बाई 2 है, ये dz है, तो इसके जगह पूरा तुम dz लिख लो, इसकी जगह पूरा हम dz लिख देंगे, ये 2, दिस इज 2, सो ये टोटल हो जाएगा dz बाय दिस इज 1 प्लस z का इंटीग्रेशन, विच इज इवेंचुअली ln ऑफ 1 प्लस z, ln ऑफ 1 प्लस z प्लस c को एक्चुअली log c मानते हैं, तो इट बिकम्स ln ऑफ c इंटू 1 प्लस z। ओके, सपोज ln c मान लेते हैं, ln c भी कांस्टेंट है, ln c भी कांस्टेंट है, सो ln ऑफ c इंटू 1 प्लस z, ये आपका लेफ्ट साइड में कौन था रे, t इज इक्वल्स टू आई थिंक
लेफ्ट साइड में था t नहीं, राइट साइड में था x, यहाँ पे ये हो जाएगा x, तो दिस इज इक्वल्स टू x होगा, इज इक्वल्स टू x। इंटीग्रेट नहीं करने से पहले ये dx था, ओके, डायरेक्ट x लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब इज इक्वल्स टू x है, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू ये c इंटू 1 प्लस जेड होगा। फिर z को फिर आप t के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा, व्हाट इज z इज 10t/2, तो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू ln ऑफ c इंटू 1 प्लस, ओके, 1 प्लस ln t/2, सॉरी ln नहीं, 10t/2, 10t/2। फिर हमें 10t/2 को अगेन t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू ln mod ऑफ c इंटू 1 प्लस 10x प्लस वाई बाय 2 प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर, दैट्स योर आंसर। सो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंड dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy by dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। यहाँ भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। सो पुट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t, differentiate with respect to x, it becomes 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. So dy by dx plus 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. So put 1 plus dy by dx is equals to ये हो गया dt by dx, और ये वाला टर्म हो गया e की पावर t. So dt by et is equals to dx. So e to the power minus t dt is equals to dx. Now integrate, so this become e to minus of e की power minus t plus c is equals to x हुआ, okay, plus c is equals to x हुआ, and that's your answer कि x प्लस ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो हमारे सिलेबस में ये लीनियर, ये सब फर्स्ट ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में है, ओके। सो डेफिनेशन देखो, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of first order and the first degree, first order is said to be a linear differential equations, a linear differential equation, okay, if it is in the form of if it's in the form of dy by dx plus py is equals to q, okay, dy by dx plus py is equals to q, where
this P and Q are function of x only। ये जो P और Q है both are the function of x, only x। ओके, P मतलब ये 2x प्लस 3 किंवा x स्क्वायर प्लस 2x किंवा sin x किंवा 10x, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओनली फंक्शन ऑफ इन टर्म ऑफ x होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि p का वैल्यू 2x प्लस 3y होगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। कि q का वैल्यू x प्लस y, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। कि p और q का वैल्यू ओनली फंक्शन ऑफ x, x में x का कुछ टर्म्स होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, so dy by dx is equals to okay plus y log x is equals to x। ये भी एक आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारा p इज इक्वल्स टू लॉग x है और q इज इक्वल्स टू x है। p इज इक्वल टू लॉग x है और q इज इक्वल्स टू x है। Okay, another example, 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equals to tan inverse of x। Okay, is equals to tan inverse of x। ये भी अगर ध्यान से देखोगे तो dy by dx का कोफिशिएंट तो हर जगह में 1 है, तो dy by dx के कोफिशिएंट अगर 1 करेंगे, ये सेकेंड एग्जाम्पल, सो इट विल बी dy बाई dx, हर टर्म में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी देखो इसी फॉर्म में ही है, इसी फॉर्म में ही है। वह आपका जो p है यहाँ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और जब आपका q होगा और tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। कभी कभी इस जनरल फॉर्म में देखो, इस केस में x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इस केस में जो x is independent variable and y is your dependent variable। ओके, सो अगर कभी कभी फंक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सचेंज करता है, मतलब y को इंडिपेंडेंट और x को डिपेंडेंट बना देता है, तो उसी केस में जो जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, इस केस में होता क्या है, इसी केस में क्या हो जाएगा कि ये dx बाय dy हो जाएगा प्लस px इज इक्वल्स टू q होगा। ओके, इस केस में x आपका डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, मतलब dy बाई dx है, मतलब y आपका डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। dx बाई dy मतलब ये x डिपेंडेंट और y आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस केस में where this p and q are function of y only, ओके। तो इसी केस में एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। वन प्लस y dx बाय dy प्लस xy इज इक्वल्स टू साइन x, इज इक्वल्स टू साइन x,
इज इक्वल्स टू मान लेते हैं वाई। ओके, सो इट विल बी डी एक्स बाय डी वाई है। 1 प्लस वाई डिवाइड करो तो ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स वाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय 1 प्लस वाई। ओके, सो इस केस में जो p है, p होगा y प्लस x को छोड़ने के बाद px, मतलब x को छोड़ने के बाद बाकी जो टर्म है y वो p है, और q इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली y बाय 1 प्लस वाई अगेन। ओके, सो डिपेंड करता है कि ये कौन सी फॉर्म में है। अभी इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कहते हो कैसे होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए मैं फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सपोज कंसिडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, कंसिडर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में है। इसका फास्ट निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसे हम कहते हैं आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होगा, डी वाई बाई डी आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी टी एक्स। ओके, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो फर्स्ट आपको p आपको ढूंढना है कि p का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, देन यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये ढूंढने के बाद आंसर है। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज आफ्टर फाइंडिंग IF, okay, new factor, the solution is basically the solution of the linear differential equation is y into IF integrating factor is equals to integration of q into IF dx। ओके, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशंस, और dx की फॉर्म में लिखेंगे तो y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स आई एफ तो ई टू द पी डी एक्स है इंटू क्यू इसका होल इंटीग्रेशंस dx। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट आपको एक काम करना है कि p क्या है और q क्या है ये देखना है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर लीनियर है, आप कंफर्म हो गए, तो आपको p ढूंढना है, उसके बाद q ढूंढना है। p अगर मिल गया तो फर्स्ट ये चेक करना है कि ये किस फॉर्म में है। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। इस केस में पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इस केस में पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, उसके बाद p मिलने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर हो जाएगा y इंटू आई एफ
इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, इसी केस में क्या होगा, इसी केस में फॉर एग्जाम्पल फॉर डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है and that is e to the power integration of p dy. The integrating factor is e to the power p dy. और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज x into e to the power p dy is equals to e to the power integration of p dy into q इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, बात वही है सेम x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशंस, होल यहाँ dy है, सॉरी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, आई एफ का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ओके, इस केस में ये दोनों हैं, इस केस में आई एफ का फॉर्मूला ये है और ये आपका सेम है। एक याद हो जाएगा तो उसका उल्टा, बस एक्स की जगह में वाई तो लिखना है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन, एक इजी वन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ देखो फर्स्ट ये लिनियर के फॉर्म में है कि नहीं, एग्जैक्टली तो हमें दे दिया है ऑब्वियसली, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कंपेयर करो, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कंपेयर करो। पी की जगह ऑब्वियसली पी का वैल्यू 1 है, 1 भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, और क्यू इज योर ई टू द पावर माइनस एक्स। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या बन जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एंड दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू है 1, सो 1 डी एक्स, सो ई टू द पावर एक्स हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर ई टू द पावर एक्स। सो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into if is equals to q into if इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो y into if आपका e टू द x है इज इक्वल्स टू q आपका है, व्हाट इज q, e टू द माइनस x और if है e टू द x, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1 e to the power minus x into either x, obviously 1 dx is equals to x plus c, so y into e की power x is equals to x plus c and that is your answer of the first questions। ओके, ये सिंपल है। देखो आई एफ निकालिए, आई एफ आपका e to the पी डी एक्स है, आई एफ निकालने के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y into आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड प्रॉब्लम है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, डी वाई बाई डी एक्स क्या नेकेड होना चाहिए, इसमें कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सो divide x square minus 1 in the both every term, it will be dy by dx plus 2xy by x square minus 1, okay, is equals to 1 by x square minus 1। सो यहाँ देखोगे who is the IF कौन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट p क्या है, p इज द 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, y को छोड़ के। q क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन, सॉरी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx with 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx।
देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना है, दैट इज वेरी इजी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2x पे है, तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। सो इसका इंटीग्रेशन होता क्या है जनरली, दिस इज लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ई और लॉन तो कैंसिल होता है, ओके। फॉर्मूला है आपका ई टू द पावर लॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, लॉन ऑफ ई टू द एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओनली। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर minus 1. Now coming to the solutions. So y into integrating factor is equals to q into integrating factor, इसका whole integration with respect to x, इसका whole integration with respect to x, okay. So if क्या है, if is your x square minus 1, so y times x square minus 1 is equals to q is your 1 by x square minus 1 times x square minus 1 with dx integrations, okay. So x square minus 1 and x square minus 1 get cancelled, so here also the remaining part is dx, but the integration of dx which is x, so y times x square minus 1 is equals to x plus c, and that's your final answer, okay. Now moving on to our next questions. Moving on to our next questions. So question number 3, 1 plus x square dy by dx is equals to plus 2xy is equals to cos x is equals to cos x, okay. So first इसके फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी dy by dx plus 2xy by 1 plus x square is equals to cos x by 1 plus x square, okay. So here आपका p is equals to 1 plus x square, p is equals to 1 plus x square and q is equals to p क्या है, py मतलब ये आपका p हो गया, p is equals to 2x by 1 plus x square, q is equals to cos x by 1 plus x square, okay. तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx हमारा if का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला इज e टू द पावर 2x by 1 plus x square dx. दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, सो एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो ई टू द पावर लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ई टू द पावर लॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज योर y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q क्या है, cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ, इसका होल इंटीग्रेशन x स्क्वायर कैंसल्स, सो cos x सिर्फ cos x बचा, सो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर।
ओके, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखो ये ऐसे लीनियर में तो लग नहीं रहा है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स के केस में ये लीनियर नहीं लगेगा, इसको उधर लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स बाई डी वाई से कन्वर्ट करो, तो ये डी एक्स बाई डी वाई उधर जाएगा तो ये डी एक्स बाई डी वाई हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 है। ओके, तो डी एक्स बाई डी वाई होने से फॉर्म क्या है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, सो x को उधर ले आओ, सो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ओके, तो अभी हम अगर चेक करेंगे p की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो p इज इक्वल्स टू -1 है और q इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 है। ओके, p इज इक्वल्स टू -1 है और y इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 है। सो नाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इसका फॉर्मूला dx बाई dy के फॉर्म में है, थोड़ा सा डिफरेंट है, e टू द पावर p dy है। सो e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया e की पावर -y। e की पावर -y आपका आंसर IF हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर -y। फिर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म होता क्या है, x इंटू IF इज इक्वल्स टू q इंटू IF इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। ओके, सो x इंटू IF इज योर e की पावर -y इज इक्वल्स टू q इज योर y प्लस 1, सो e टू द -y IF इंटू 1 प्लस y, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको करना पड़ेगा बाई पार्ट्स करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा ये और सेकंड फंक्शन हो गया ये हमारा v। ओके, और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, u v का इंटीग्रेशन इज u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। ओके, डी एक्स है वो। सो 1 प्लस वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -y माइनस डी बाई डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -y, इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो क्या होता है, e की पावर -y का इंटीग्रेशन होता है -e की पावर y, तो इट विल बी 1 प्लस वाई इंटू माइनस ऑफ e की पावर -y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव। देखो यहाँ वेरिएबल dy है, सबको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस वाई का 1 है और इसकी इंटीग्रेशन -e की पावर -y है, और आगे से पहले से एक माइनस साइन है हमारे पास। लेफ्ट साइड में क्या बात है कि x इंटू e की पावर -y इज इक्वल्स टू, सो 1 प्लस वाई टू द e टू द -y, अभी ये 1 इंटू है तो माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -y dy हो गया, तो अगेन 1 प्लस वाई टू द इंटू e टू द -y, इसका इंटीग्रेशन फिर हुआ कितना -e की पावर -y प्लस c, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो योर आंसर इज x इंटू e की पावर -y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई होल टू द पावर e की पावर -y माइनस e की पावर -y प्लस c। That's your final answer. So pause the video to note it down. So that's it for today's class.
In this class we have discussed about the linear differential equation, okay, and their solutions. In the next class we are going to discuss some more problem about this linear differential equation. So bye bye, take care, see you in the next class.